آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر میں 12 جون تک اضافی پانی کی فراہمی شروع کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے حکم پر انتظامیہ متحرک۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے واٹر ٹینک اور پائپ لائن کے کام کو فوری مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ کام میں لاپرواہی برتنے والے کانٹریکٹرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا انتباہ۔ عوام پر مہنگائی کا دوہرا وار، پیٹرول 3 روپے 14 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ گھریلو بجٹ بگڑا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی جنگ اور امپورٹ ڈیوٹی 15% ہونے سے سونے اور چاندی کی قیمتیں بھی پہنچی ریکارڈ سطح پر۔ صرافہ بازاروں میں گاہکوں کا رش غائب۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پڑے گاؤں میں گائیڈنس کیمپ کا انعقاد۔ ایک ہی چھت کے نیچے شہریان کو ہاؤسنگ لون، شرح سود اور دستاویزات کی تفصیلی معلومات کی گئی فراہم۔ 16 اور 17 مئی کو ہرسول میں بھی لگے گا خصوصی گائیڈنس میلہ۔ اور تاریخی شہر اورنگ آباد کے قلعہ ارگ کی سرکاری زمین پر شاندار اردو گھر تعمیر کرنے کا مطالبہ تیز۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے نائب وزیر اعلیٰ سنیترا تائی پوار اور ضلع کلکٹر کو بھیجا تفصیلی میمورنڈم۔ خالی زمین کو تجاوزات سے محفوظ رکھ کر فوری منظوری دینے کی گئی پرزور اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے شہر میں 12 جون تک اضافی پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے واٹر ٹینک اور پائپ لائن کی مرمت کے کام کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عیاں رہے کہ شہر میں 12 جون تک اضافی پانی سپلائی شروع کرنے کے مقصد سے موجودہ اور نئے تعمیر شدہ واٹر ٹینکوں سے پانی کی فراہمی کے لیے ضروری پائپ لائن کے جوڑنے کا کام فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایات ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے دی ہے۔ ڈویژنل کمشنر دفتر کے کانفرنس ہال میں شہر کی نئی پانی سپلائی اسکیم کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر امول یڈگے اور مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی چیف انجینئر منیشا پالانڈے سمیت GVPR کمپنی کے نمائندے موجود تھے۔ ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو 12 جون تک شہر کو اضافی پانی دینے کا سخت حکم جاری کیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے واضح کیا کہ عدالتی احکامات کے مطابق وقت پر پانی سپلائی شروع کرنے کے لیے پمپوں کی جانچ، ٹینکوں کے چھوٹے موٹے کام اور والو کی صفائی بروقت مکمل ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ضرورت پڑنے پر اضافی افرادی قوت تعینات کر کے کاموں میں تیزی لائی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو کانٹریکٹر وقت پر کام مکمل نہیں کریں گے یا لاپرواہی برتیں گے ان کے خلاف ضابطے کے مطابق سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عثمان پورے کے موریا چوک علاقے میں میونسپل کارپوریشن نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 150 mm آبی لائن پر موجود 42 غیر قانونی نل کنیکشنز کو منقطع کیا ہے۔ شہر میں شدید گرمی کے پیش نظر پانی کی سپلائی کو منظم اور بلا رکاوٹ برقرار رکھنے کے لیے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے غیر قانونی نل کنیکشنز کے خلاف ایک بڑی اور سخت مہم کا آغاز کیا ہے۔ میونسپل کمشنر امول یڈگے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے عثمان پورے کے موریا چوک علاقے میں خصوصی کارروائی کی گئی، جہاں 150 mm کی ذیلی آبی پائپ لائن پر موجود 42 غیر قانونی نل کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ یہ کارروائی ایڈیشنل میونسپل کمشنر کلپتا پمپلے کی رہنمائی اور ایڈیشنل سٹی انجینئر انیل تنپورے کی نگرانی میں واٹر سپلائی ٹیم نے انجام دی۔ انتظامیہ کے مطابق اس مہم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چوری کے پانی کو روکا جائے اور قانونی نل صارفین کو مناسب دباؤ کے ساتھ باقاعدہ پانی فراہم کیا جا سکے۔ میونسپل انتظامیہ نے شہریان کو متنبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ شہر میں غیر قانونی نل کنیکشنز اور پانی کا ضیاع کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت، وسیع اور بے لچک کارروائیاں بلا روک ٹوک جاری رکھی جائیں گی۔ اورنگ آباد کے ضلع پریشد میں سال 2026 کے لیے عام تبادلوں کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جہاں مختلف محکموں کے 89 ملازمین کے تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اورنگ آباد ضلع پریشد میں سال 2026 کے لیے سرکاری ملازمین کے عام تبادلوں کا 2 روزہ دورہ بالآخر مکمل ہو گیا ہے۔ ایلورا ہال میں منعقدہ اس پوری کارروائی کے دوران مختلف محکموں کے کل 1214 ملازمین کے معاملات کا جائزہ لیا گیا، جس میں سے سرکاری قوانین اور شفاف پالیسی کے تحت
कुल 89 मुलाजिमीन के तबादले के अहकामात जारी किए गए। ये कार्रवाई ज़िला परिषद के आला ओहदेदारान और CEO मिन्नू PM की बराह रास्त निगरानी में अंजाम पाई। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि जिन मुलाजिमीन की ड्यूटी फ़िलहाल मरदमशुमारी सेंसस के ज़रूरी कामों में लगाई गई है, उनके तबादले अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस बार नहीं किए गए ताकि इंतज़ामी काम मुतासिर न हों। औरंगाबाद में पेट्रोल 3 रुपये 14 पैसे जबकि डीज़ल 3 रुपये 11 पैसे महंगा होने से आम शहरियान का माहाना बजट बिगड़ गया है और आवाम में शदीद नाराज़गी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से औरंगाबाद के आवाम को महंगाई का एक और बड़ा और ज़ोरदार झटका लगा है, जिससे हर तबका परेशान है। शहर में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 14 पैसे और डीजल की कीमतों में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर का भारी इजाफा किया गया। इस अचानक और यकमुश्त इजाफे से न सिर्फ आम बाइक और कार मालिकान परेशान हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने की वजह से मंडियों, बाज़ारों में सब्जियों और रोज़मर्रा की दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें भी यकायक बढ़ने का शदीद ख़तरा पैदा हो गया है। आम शहरियान का कहना है कि पहले ही से उनका माहाना घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और अब ईंधन की इस नई कीमत ने मिडल क्लास और गरीब ख़ानदानों की माशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर संजय शिरसाट ने पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों के पीछे बैनुल अक़वामी जंगी हालात को बुनियादी वजह करार दिया है। बघा, आता हे सर्व विरोधी पक्ष यांच्याकडे कोणताही विषय नसल्यामुळे त्यांना देशाच्या घडामोडीमध्ये काय योगदान द्यायचंय याची काही काळजी नाहीये। आज देशामध्ये जो काही पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा होण्याची शक्यता आहे त्याचा प्रिकॉशन म्हणून आपण हे उचललेलं पाऊल आहे। उद्या जर एखाद्याने भरपूर पेट्रोल वापरायचं असेल तर त्याला काही हातकड्या घातल्या जाणार नाही, परंतु देश हितासाठी जर काही काम करायचं असेल तर थोडं पेट्रोल वाचवलं पाहिजे, हे भावनिक आव्हान सुद्धा पंतप्रधानांनी केलंय आणि ते देशाच्या हितासाठी केलंय। थोडं दर वाढवलंय। 3 रुपयानं पेट्रोलचे भाव वाढले, या पाठीमागचं कारण तर खूप मोठं दिसतंय। युद्धामुळे पण ते झालं असावं, पण मला वाटतं पेट्रोल हे जीएसटी मध्ये येऊन कमी करावं दरवाढ, आणि शासनाकडून एवढीच मागणी आहे। आणि सर्वसामान्यांना फटका तर बसतो, पण त्याबरोबर खाद्यपदार्थ याच्यावर भार येईल। आणि दुसरी गोष्ट सर्वसामान्यांवर ही शासनाकडे एवढीच मागणी आहे का ह्या 3 रुपयाचा जो वाढ केली दरवाढ ही मागे करावी आणि जीएसटी मध्ये आणल्यावर आणखी थोडं भाव कमी होईल, जेणेकरून बाकीचे पण पदार्थ साहित्य कमी होतील, कारण त्याच्यावर वाहतुकीचा लोड असतो। कारण वाहतूक पेट्रोल वाढ झाली की वाहतूकवाले ते भाव वाढ करतात आणि सगळ्याच गोष्टींमध्ये भाव वाढ होईल। आता वाटायला काय, आता ते कमी राहायला पाहिजे। आता जे सर्वांचं होणार ते पण आपलं होणार। आता काय ते वाढ चालू आहे म्हणून आता जे ते मोठे लोक करणार ते पण करणार। आता काय पूर्ण देशाला त्याचा फटका आहे, आपल्यालाच काय पूर्ण देशाला फटका त्याचा। आमची फक्त एकच मागणी की थोडा तुम्ही पेट्रोल गॅस आणि ते कमी करा म्हणून थोडाफार काही नाही। आता प्रॉब्लेम उभे राहणार ना, जेव्हा सगळीकडे आहे त्यामुळे प्रॉब्लेम उभे राहणार, महागाई होणार, फटका तर बसणारच, पण माणसं वापर कमी करावा लागेल। दुसरं काय त्याचा, सगळ्यांनी सहकार्य करावं त्यांच्याबरोबर, आपण पण सहकार्य करावं, थोडी गाडी कमी फिरवावी, 2-2 जण एका गाडीवर जावं, दुसरं ऑप्शन काय राहणार। असं पहिले त्याने वाढवलं त्याचा खिसा फटका होता, आजही फटका उद्याही फटका आहे, पण सरकारने नियम असा करावा की ठीक आहे बुवा आता वाढलं म्हणून वाढवलं, पण जेव्हा कमी होईल त्यावेळेस कमी पण करावं ना। त्यावेळेस सरकारने दुसऱ्याला पेट्रोल आपण स्वस्तात घ्यायचं आणि दुसऱ्या देशाला विकायचं असे प्रकार नाही करावे। साध्या गोष्टी ना त्या, ज्यावेळेस आपण कोणाला महागाई झाली तर आपण त्याच्याकडनं पैसे घेतोय सरकार जनतेकडनं, तर जनतेला सुख पण द्यावं, नंतर ती काळजी घ्यावी इथून पुढे। मशरिक़ वस्ता की जंग और इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफे के बाइस सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जिससे बाज़ारों में ग्राहकों की चहल पहल ख़त्म हो गई है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी हालात की वजह से आलमी मईशत और मालियाती बाज़ारों में बड़ी उथल पुथल मची हुई है, जिसका सीधा असर अब भारत के सराफा बाज़ार पर भी नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में ख़ाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये पर बढ़ते दबाव और हुकूमत की जानिब से सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने की वजह से सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क के फॉरेक्स रिज़र्व पर तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शहरियान से कुछ वक्त के लिए सोना ख़रीदने से गुरेज़ करने की अपील की अफवाहों के बाद
बाजारों में ग्राहकों का रश अचानक गायब हो गया। सराफा एसोसिएशन के सदर महेश देसाने के मुताबिक दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है, जिससे ताजिरों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर हो चुकी हैं और खदशा है कि आने वाले शादियों के सीज़न में भी बाजार का यही हाल रहेगा। आता मोदीजीने आवाहन केलं की बाबा सोनं म्हणजे वर्षभर घेऊ नका, हे करा. लगनसराई लग्नामध्ये प्रत्येक ह्याच्यात 2-5 ग्रॅम हो किंवा परिस्थितीनुसार हे गिराईक सोनं घेतच असतं. पण आता मोदीजीने आव्हान केलं आणि लगेच सांगितलं की वर्षभर घेऊ नका. आता महाराष्ट्र की म्हणा किंवा हिंदुस्थान म्हणा, हा कृषीप्रधान देश आहे. याच्यावर म्हणजे शेतीमाल असो किंवा जे आपले व्यापारी असो किंवा आमचे कारागीर असो, एक करोडो लोक जे आहे की याच्यावर या आमच्या सोन्या चांदीच्या धंद्यावर अवलंबून आहे. आता हे मोदीजीने याची बातमी दिली किंवा सांगून एक गोरगरीब म्हणा किंवा जे शेतकरी आता लग्न सराईत सोनं खरेदी करतात, नंतर लगेच गिरवी ठेवून किंवा मोडून ते शेतीमध्ये साठी उपयोगी करतात. हा एकच पर्याय त्यांच्याजवळ हा आहे. आणि यांनी आवाहन करून सर्व सराफ असो किंवा सुवर्णकार असो यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्या गोष्टीसाठी हे करतो बाबा की ही अशी गोष्ट व्हायला नव्हती पाहिजे आणि असे आवाहन करायला नव्हते पाहिजे. आणि त्यांनी आजच एक सोने चांदीवर इम्पोर्टेड ड्युटी पहिले होती 6%, आता 15% गेली. त्यानंतर त्यांनी बेसिक कस्टम 5% ड्युटी होती, ती 10% केली. ॲग्रिकल्चर इम्पोर्टेड डेव्हलपमेंट सेक्स 5% तो लावला. त्यामुळं सोने चांदीचे पुन्हा भाव वाढणार, लोकात संभ्रम होणार की बाबा भाव वाढले आणि मोदीजीने आवाहन केलं आता कमी होईल का जास्त होईल. यामुळं जे आमचे सराफ बांधव असो किंवा कारागीर असो किंवा जे आमचे सोनार बांधव असो यांच्यावर पुन्हा उपासमारीची वेळ येणार आहे. हे असं जेव्हा सुवर्ण नियंत्रण कायदा होता तर हाच प्रकार झाला होता. सध्याला सोने विक्रीवरती काही परिणाम कसा जाणवतो? विक्रीवर परिणाम म्हणजे एकदमच आज समजा 7-8 हजार रुपये सोन्याचा भाव वाढला, त्यामुळं लोक संभ्रमित झाले की बाबा घ्यावं का नाही घ्यावं. आणि लगनसराई असल्यामुळं थोडं गिराईक म्हणजे सध्याला नगण्यच झालेले. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में अचानक इजाफे के बाद रक्षा ड्राइवरों और आम शहरियान में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद गुस्सा देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये और सीएनजी में 2 रुपये फ़ी किलो के अचानक इजाफे ने आम गाड़ी मालिकान और रिक्शा ड्राइवरों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। शहर जालना के रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि महंगाई के इस दौर में वो अपना कारोबार और घर कैसे चलाएं। शहरियान का कहना है कि एक तरफ पीएम मोदी और दीगर लीडरान गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की नसीहत देते हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग खुद बड़ी गाड़ियों के काफिलों में घूमते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि ईंधन का स्टॉक तो काफ़ी है, लेकिन कीमतें बढ़ने से ग्राहक इंतहाई महदूद ख़रीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार के माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। सध्या आपल्या देशामध्ये महागाई इतकी वाढलेली आहे, ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या प्रत्येक गोष्टीचा या सरकारने या ठिकाणी भाव वाढलेले आहेत आणि अत्यंत त्रासदायक आहे. सरकार आपल्या देशाला सध्या त्रासामध्ये घालतं आहे. सर्वसामान्य माणसाला म्हणजे जग फक्त जिवंत आहे एवढंच त्यांनी विकास समजावा असं या देशामध्ये चाललेलं आहे. आणि पेट्रोल डिझेलचे भाव तर वाढलेत, परंतु गॅस झालं, त्याच्यानंतर प्रत्येक वस्तूचे, गाड्याचे, मोटरसायकलचे, प्रत्येक गोष्टीचे भाव वाढलेले आहेत. त्याच्यानंतर आता सोनं खरेदी करू नका, शासन सांगतं सोनं खरेदी करू नका. त्याच्यानंतर शासन म्हणतं तेल खाऊ नका. ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत, ज्या रोजच्या रोज दैनंदिन गरजा आहे आपल्या, त्या सर्व गोष्टीवर यांनी GST लावून ठेवला. अगोदरच आपल्या खाण्यापिण्याच्या टोटल दही, दूध, तांदूळ, साखर या सर्व गोष्टीवर यांनी GST लावून ठेवलेलं आहे. सर्वसामान्यांचं जगणं या ठिकाणी कठीण झालेलं आहे. भाव वाढत आहेत. सर्वसामान्यांना हा परवडणारा विषय आहे. सर्वसामान्यांनी काय करायचं की आज आपण बघतो की सर्वत्र महागाईचा भस्मासूर चालू आहे, तर सर्व लोकांना ही परवडणारी बाब नाही आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोल जर भाव असे वाढत गेले तर सर्वसामान्यांनी फिरायचं का नाही, हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे सर्वसामान्यांचा. आणि याच्यामध्ये आम्ही रोजची धंदेपाणी करणारे, रोज कमवून खाणारे लोक, आणि एवढं महाग पेट्रोल असते का? 10 रुपये शीट द्यायलेले आम्हाला, आणि पेट्रोल चाललं 130 रुपये, ऑइलसोबत चाललं 130-135 द्यायला लागले.
काय धंदे करणार, काय राहणार, काय खाणार, लेकराला काय ठेवणार, काय आम्ही ठेवणार पैसे. एकीकडे नेते मंडळी म्हणते पायी चाला गाड्या. हा, आता पायी चाला म्हणतात, कोणी म्हणते आता रिक्षा चालू नका, चार्जिंगच्या घ्या. चार्जिंग गाडी झाली 5 लाखात, कुठून घेणार आमचा सामान्य माणूस. हां, त्याच्यानंतर माहिती आहे का, ते म्हणते की सायकल वापरा, नहीं तो चार्जिंग की घ्या. चार्जिंगला पैसे का भरायला 1 लाख रुपये आमचे जवळ. मेरा नाम जितेश बयानी, पंप का नाम लक्ष्मीचंद बेचरदास, BPCL का पेट्रोल पंप है, देवलगांव राजा रोड पे है. आज की डेट में जो है मेरे पंप लक्ष्मीचंद बेचरदास के ऊपर पेट्रोल के रेट जो है 3 रुपये 14 पैसे से बढ़े हैं और डीजल के रेट 3 रुपये 11 पैसे से बढ़े हैं. पेट्रोल और डीजल का एज सच कोई भी शॉर्टेज नहीं है. हमारी मांगनी के अनुसार कंपनी माल दे रही है. निम्र निवेदन है कि भाई आपने पैनिक होकर बाई नहीं करना. आप जो रेगुलर बाय कर रहे वही प्रोडक्ट बाय करो, जो है उसके अंदर आपको प्रोडक्ट हर पंप पे मिलते रहेगा. हम पहले से ही भारत देश जो है 80-85% जो है माल इंपोर्ट करता है, पेट्रोल डीजल ये सारा जो है. तो हमेशा ही हमको इसका पेमेंट जो है परकीय चलन में करना है. तो वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जो है ये बोले गया है कि भाई इसका वापर जो है कम करो, ताकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम ना हो और हमको इंपोर्ट में डॉलर का पेमेंट जो है कम करना पड़ेगा. ये हिसाब से बोले गया है. जहाँ आपका ज़रूरी है, आपका एकदम क्रिटिकल काम है, उसके अंदर कहीं आपको कपात और ये करने की ज़रूरत नहीं है. आप आपका रूटीन ये कर सकते हो. जो है कारपूल की कंसेप्ट, उसको आप ध्यान में रखो कि एक आदमी एक कार में बैठ के जा रहा है और तेल जला रहा है. उसकी जगह जो है उनका बोलना ये है कि भाई आप 4 आदमी जो है एक कार का इस्तेमाल करो, ताकि चारों लोग अपनी जगह पे पहुंच जाए और तेल का वापर कम हो. बोलने का मतलब सिर्फ उतना ही था उसके अंदर. जो रियासती काबीना ने सरकारी भर्तियों में बड़ा मुतबादिल किया है. अब रिजर्वेशन कैटेगरी में उम्र या अहलियत की रियायत लेने वाले उम्मीदवारों को ओपन मेरिट में मौका नहीं मिलेगा. हुकूमत महाराष्ट्र ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए मुरव्वजा कवानीन में एक बहुत बड़ा दूररस और तारीख़ी मुतबादिल करने का फ़ैसला किया है. काबीना के नए मंजूर शुदा उसूल के मुताबिक अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी का उम्मीदवार अपनी उम्र की हद, तालीमी अहलियत या तजुर्बे में किसी भी किस्म की सरकारी रियायत या सहूलत हासिल करता है, तो वो अब ओपन या जनरल कैटेगरी की सीटों पर मेरिट की बुनियाद पर भी दावा करने का हकदार नहीं रहेगा. ऐसे उम्मीदवारों को अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की अपनी मखसूस रिजर्व कैटेगरी की सीटों पर ही सिलेक्शन दिया जाएगा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आलं होतं, त्या प्रस्तावामध्ये असं सांगितलेलं आहे की ज्यांनी SC प्रवर्गातला असेल त्यांनी स्कॉलरशिप पासून ते शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ज्या सर्व फॅसिलिटी जर घेतल्या असेल तर त्याला त्याच प्रभागामध्ये तुम्हाला ॲप्लिकेशन करता येईल किंवा जॉब शोधता येईल. परंतु ओपन कॅटेगरीमध्ये जाण्यासाठी SC प्रभागाचा जरी असला आणि त्यांनी ह्या सुविधा जर घेतल्या नसतील तर त्याला ती संधी देण्याचं सरकारने त्या ठरावामध्ये म्हणलेलं आहे. आता हा मंत्रिमंडळासमोर काल आलेला ठराव आहे. याच्यावर इतिवृत्त कायम होईपर्यंत नंतरही चर्चा होऊ शकते आणि याच्यामध्ये आणखीन कुणाचं काय मत आहे हे सुद्धा मंत्रिमंडळासमोर येऊ शकते. म्हणून अखेरचा इतिवृत्त फायनल होईपर्यंत चर्चेला वाव आणखीन आहे आणि त्याच्यावर सविस्तर चर्चा सुद्धा होईल. या संदर्भामध्ये आम्ही काय करतो हे सर्वांना माहिती आहे. म्हणून आम्ही यावर मी आताही सांगितलं की इतिवृत्त फायनल होईपर्यंत, कन्फर्मेशन मिळेपर्यंत त्याच्यावर चर्चा सुद्धा करता येईल आणि आपलं मत सुद्धा सरकारकडे मांडता येईल. लेनिननी जे काही वापरलंय ते इतर दुश्मनासाठी वापरलेलं वाक्य आहे. संजय राऊत हा स्वतःच्या देशामधल्या मुलांना, युवकांना मंदबुद्धीचं संबोधतो. हे मंदबुद्धीचेच लोक आहेत. स्वतः संजय राऊतची बुद्धी भरकटलेली आहे आणि ह्या युवकांना काय दिशा द्यायची हे देण्यापेक्षा तो कसा मंदबुद्धीचा आहे हे सिद्ध करण्याचा संजय राऊतचा खटाटोप आहे. म्हणून अशा माणसाच्या विचाराशी कोणी सहमत होणार नाही आणि त्याला कोणी पाठिंबाही देणार. मंदबुद्धीचे तुमच्याकडे असलेले सर्व जे नेतेगण आहेत त्याच्यामुळे तुमचा पक्ष थंडावलेला आहे. त्याची तुम्ही काळजी करा. आमचा युवक हा आजही तेवढ्या ताकदीचा आहे, आजही तेवढा जोशाचा आहे आणि तो जो काही निर्णय घेतो तो विचारपूर्वक घेतो. ही परंपरा आमच्या देशाला लाभलेली आहे. निदा खान गिरफ्तारी केस में साबिक MP इम्तियाज़ जलील का नाम आने के बाद वज़ीर संजय शिरसाट ने वज़ीर आला को ख़त लिखकर मामले की SIT जांच का मुतालबा किया है. औरंगाबाद का हाई प्रोफाइल निदा खान गिरफ्तारी मामला अब पूरी तरह से सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है और इसमें नए इंकशाफात हो रहे हैं.
रियासत के काबीना वजीर संजय शिरसाट ने अब वजीर आला एकनाथ शिंदे को एक बाज़ाब्ता ख़त लिखकर इस पूरे केस की SIT यानी खुसूसी तहकीकाती टीम के ज़रिए जांच कराने की मांग की है। शिरसाट के इस ख़त में MIM के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और साबिक़ कारपोरेटर मतीन पटेल के नामों का वाज़ेह ज़िक्र किया गया है। संजय शिरसाट का कहना है कि इस केस में बाअसर सियासी रहनुमाओं के मुलविस होने की खबरों से अवाम में कई तरह के शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए गैर जानिबदाराना जांच ज़रूरी है। म्हणून मी त्यांच्याकडे एक पत्र दिलं की मला साहेब SITची चौकशी या ठिकाणी नेमणं गरजेचं आहे, आणि त्यांनी तातडीने सांगितलं की होय SITची चौकशी केली जाईल, SITच्या मार्फतच चौकशी केली जाईल. आणि म्हणून त्याच्यावर आता सरकार सुद्धा ऍक्शन मोडवर आहे. सरकार त्यांच्यातर्फे जे काही पोलिसांना निर्देश द्यायचे ते दिलेले आहेत. म्हणून हे निधा प्रकरण हे मोठ्या प्रमाणात त्याचा तपासही होईल आणि महाराष्ट्रामध्ये असे किती ठिकाणी असं प्रकरण घडलंय याची सुद्धा चौकशी होईल. मतीन कुठे आहे हे नाशिकचे पोलीस आयुक्त कर्णिक हे सांगू शकतील. त्याची कारवाई जी त्यांची चाललेली ते अत्यंत चांगली पद्धतीने चालू आहे. त्यांना नोटीसही दिली होती. आताही माझी माहितीप्रमाणे 2 दिवसापूर्वी काही पोलीस पुन्हा मतीनच्या घरी किंवा त्या साईडला येऊन गेलेले आहेत, परंतु मतीन त्यांना तिथे भेटला नाही अशी काही एकंदरीत माहिती आहे. परंतु अखेरला नाशिक पोलिसांचा पूर्ण त्यांच्यावर कंट्रोल आहे आणि त्या संदर्भामध्ये खुलासे फक्त तेच करू शकतील. असं नसतंय. सूड घेण्यासाठी असे प्रकरण निघतात का? मी सुडाची भावना तशी कधी ठेवलेली नाहीये. ते प्रकरण आजही तुम्ही जाऊन कधी चौकशी करा ना. डिव्हिजनल कमिशनरने 4 सदस्याच्या सरकारने आदेश दिला, तर चौकशी चालू आहे. आता काय करतायत हे लोक की हे मतीन प्रकरण दाबण्यासाठी किंवा हे निधा खान प्रकरण दाबण्यासाठी हे दुसरं प्रकरण आणून त्याच्याकडे कसे हे आपली दिशा भरकटेल. पत्रकार आहे तो, हुशार आहे तो. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पड़ेगांव में एक कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें शहरियान को एक ही छत के नीचे बैंकिंग और कर्ज़ की सहूलियात फराहम की गईं। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवामी सहूलत और रहनुमाई के मकसद से पड़ेगांव में एक अजीमुश्शान विकास मेला मुनक़िद किया गया, जिसे शहरियान की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई। ये मेला म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे, मेयर समीर राजूरकर और दीगर मोअज़्ज़िज़ ओहदेदारान की तहरीक और रहनुमाई के तहत मुनक़िद किया गया। मेले का बुनियादी मकसद मुस्तहिक़ीन तक बैंकिंग सहूलियात को बराह रास्त पहुँचाना और उन्हें एक ही छत के नीचे मुकम्मल मालूमात फ़राहम करना था। इस मौके पर मुख्तलिफ़ कौमी और निजी बैंकों के नुमाइंदे और तकरीबन 300 से 400 शहरी मौजूद थे। बैंक नुमाइंदों ने शहरियान को हाउसिंग लोन के लिए दरकार ज़रूरी दस्तावेज़ात, मुमकिना शरह सूद और माहाना अक़सात के बारे में जामे मालूमात फ़राहम की और मौके पर ही उनके मसाइल का इजाला किया। डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थीटे और एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंपले ने शहरियान से इस स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की अपील की है। ये कैंप पड़ेगांव में आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगा, जबकि 16 और 17 मई को हरसूल के गट नंबर 216 में भी ऐसा ही खुसूसी कैंप लगाया जाएगा, ताकि कोई भी मुस्तहिक ख़ानदान अपने घर के ख्वाब से महरूम न रहे। सरकार दे रही है तो 10% 90 हमारे मतलब जो वेरीफाई किए थे 5,000 वो भी उसमें लगे, तो 95,000 रुपए 10% कैसे होते सर? 75 होते ना। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पूरा कैलकुलेशन हम समझा देंगे। अभी मैंने चेतन सर से भी ये सवाल की थी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। 10% नहीं होता है सर ये? नहीं, हम आप जो बोल रहे हैं ना 10% आपको प्रोविजनली ऑफर लेटर माने तात्पुरता देकर पत्र आपको दिया है। सबसे पहली बात, हम लोग कोई चीज फुकट की नहीं लेते, मेहनत की लेते हैं, लेकिन ईमानदारी ब्याज भी नहीं चाहिए। 12%, 13% गरीब आवाम है, गरीब आवाम हमने फ्लैट खरीदी है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% अगर बैंक देती है तो हम बैंक का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी विनती है, जिन्होंने नहीं भरे उनके वास्ते मैं तो भर चुकी, लेकिन और बहुत से लोग नहीं भर सकते, उनके लिए आपको ये कोशिश करना पड़ेगी सर। बाजी आपका शुभ नाम? नाम शबाना बेगम अफजल खान है। ठीक है, आपको एक रिक्वेस्ट है, कल आप ये किस तरह से प्रोविजनल ऑफर लेटर में आपको समझ चुकी। सिर्फ मेरे जहन में एक ही सवाल है, 9.5 लाख रुपए का फ्लैट समझिए सर, मोटा 10% भरना था, 10% जिसमें से सरकार ने हमको 2.5% पैसे दी, 2.5 लाख रुपए दे दिए, तो उसमें 7.5 लाख रुपए हमको भरना है 10% के हिसाब से।
तो 75 रुपीज़ होते हैं, 95 रुपीज़ क्यों भरेंगे? ज़िले में लड़कियों की गिरती हुई शरह पैदाइश पर कलेक्टर विनय गौड़ा ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए गैर कानूनी इस्कात हमल और सोनोग्राफी मराकज़ पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। औरंगाबाद ज़िले में लड़कियों की पैदाइश की शरह में आई अचानक और ख़तरनाक कमी ने ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट मोड पर ला खड़ा किया है। PCP NDT एडवाइज़री कमेटी की अहम मीटिंग में ये चौंकाने वाला इंकशाफ हुआ कि ज़िले में 1000 लड़कों के मुकाबले अब लड़कियों का पैदाइशी तनासुब गिर कर सिर्फ 897 रह गया है। पैठन, वैजापुर, खुलदाबाद और सोएगांव जैसे ताल्लुकात में सूरत हाल सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सख्त अहकामात दिए हैं कि वह बग़ैर रजिस्टर्ड इस्कात हमल की गोलियां बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस फ़ौरन मनसूख करें और गैर कानूनी सोनोग्राफी मराकज़ पर छापे मार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए औरंगाबाद, पैठन और खुलदाबाद में महिला उद्योजक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहां बेहतरीन स्टॉल होल्डर्स को असनाद तकसीम की गईं। देही और ग्राउंड लेवल की ख़वातीन में इंटरप्रेन्योरशिप की रूह को बेदार करने और उन्हें रोज़गार के नए और बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए ज़िला परिषद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू PM की मुनफरिद पहल पर एक खुसूसी महिला उद्योजक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप औरंगाबाद, पैठन और खुलदाबाद ताल्लुकात में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इस मौके पर एडिशनल CEO वासुदेव सोलंके ने ख़वातीन को बिज़नेस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की अहम बारीकियां सिखाईं। वर्कशॉप में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से हैंडीक्राफ्ट और होममेड प्रोडक्ट्स के शानदार स्टॉल लगाए गए थे, जहां बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली ख़वातीन को असनाद और तारीफ़ी खतूत से नवाजा गया, जिससे उनका हौसला मज़ीद बुलंद हुआ। औरंगाबाद के किला अर्क की खाली सरकारी ज़मीन पर एक शानदार उर्दू घर तामीर करने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया गया। तारीख़ी शहर औरंगाबाद में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ और तालीमी व सकाफ़ती ख़िदमात के लिए किला अर्क में मौजूद सरकारी ज़मीन पर एक शानदार उर्दू घर तामीर किए जाने का मुतालबा अब ज़ोर पकड़ने लगा है। इस सिलसिले में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शहर नायब सदर अहमद जलील और दीगर ओहदेदारान ने अक़लियती कमीशन के तवस्सुत से नायब वज़ीर आला सुनीत्रा ताई पवार, ज़िला कलेक्टर और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हुसैन अख्तर को एक तफसीली मेमोरेंडम रवाना किया। याददाश्त में कहा गया है कि औरंगाबाद शहर उर्दू ज़ुबान व अदब का एक अहम मरकज़ रहा है, जिसने कई मुमताज़ शुअरा और दानिश्वर दिए हैं। इसके बावजूद यहाँ उर्दू घर का न होना अफसोसनाक है। आया रहे कि किला अर्क के ज़नाना महल के करीब बड़ी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है, जहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात का खदशा बढ़ रहा है। वफ़द ने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि उर्दू दांत तबके के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए इस खाली ज़मीन को महफूज किया जाए और जल्द अज जल्द उर्दू घर की तजवीज़ को मंजूरी दी जाए। जालना के अंबर ताल्लुक़े के रोई गाँव में मोहब्बत के शुबे में एक 18 साला नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। ज़िला जालना के अंबर ताल्लुक़े के तहत आने वाले रोई गाँव में एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 18 साला नौजवान राजेश कोरकाने को मोहब्बत के शुबे में मौत के घाट उतार दिया गया। राजेश पेशे से फ़ोटोग्राफ़र था और गाँव की ही एक लड़की से मुबैना ताल्लुक़ के शक में मुल्ज़िम शुभम साले, किरण साले और अभिषेक मसले ने उससे पुरानी रंजिश रखी हुई थी। एक शादी की तकरीब के दौरान जब राजेश पंगत में खाना परोस रहा था, तभी मुल्ज़िमान ने उसका पीछा किया और धारदार हथियार से उस पर वहशियाना हमला कर दिया। इस हवलनाक हमले में राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। तीरथपुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 में से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मफरूर मुल्ज़िम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तीर्थपुरी पोलीस स्टेशन अंतर्गत रोई या गावी राजेश विष्णू कोरकाने वय 19 वर्ष ह्या युवकाचा खून झाल्याची घटना उघडकीस आलेली आहे। यामध्ये प्रथमदर्शनी आरोपीने मयत हा त्याच्या बहिणीची बदनामी करतो ह्या कारणातून असे कृत्य केल्याचे दिसून येत आहे। सदरचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। माननीय पोलीस अधीक्षक जालना श्री तेगबीर सिंह संधू सर यांच्या मार्गदर्शन व सूचनेनुसार तीर्थपुरी पोलीस स्टेशन येथील अधिकारी व अंमलदार यांच्या पथकाने या गुन्ह्यातील 2 आरोपींना ताब्यात घेतलेले आहेत। त्यांना अटक करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। शहर के बेगमपुरा इलाके में
खाम नदी के किनारे नदी के बहाव में रुकावट बनने वाले मिट्टी के टीलों और गैर कानूनी भंगार गोदामों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुनहदिम कर दिया। औरंगाबाद के बेगमपुरा इलाके में वाक़ शमशान भूमि के करीब खाम नदी के किनारे गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने एक बड़ी मुहिम चलाकर बुलडोज़र कार्रवाई अंजाम दी। नदी के कुदरती बहाव में रुकावट बनने वाले मिट्टी के बड़े टीलों और वहां गैर कानूनी तौर पर कायम भंगार गोदामों को पूरी तरह से मुनहदिम कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इंतज़ामिया ने तकरीबन 10 बाई 35 मीटर के वसी रकबे पर कायम 16 मिट्टी के टीले और एक स्क्रैप गोदाम को मुनहदिम कर दिया ताकि आने वाले मानसून के दौरान नदी का पानी आसानी से बह सके और करीबी बस्तियों में सैलाब का ख़तरा पैदा न हो। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर और तजावुज़ात कंट्रोल शोबे के आला अफसरान की हिदायत पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के अहलकारों की सख्त सिक्योरिटी में अंजाम दी गई। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि शहर के दीगर नदी नालों की सफाई और सरकारी ज़मीनों पर की गई नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। सुखना नदी की काया पलट के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने हुक्काम के साथ नदी का मुआयना करके सख्त हिदायत जारी की। शहर की सुखना नदी को उसका कुदरती हुस्न और बहाव वापस दिलाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कमर कस ली है। सुखना नदी बहाली प्रोजेक्ट के तहत जारी काम का जायज़ा लेने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने आला हुक्काम के हमरा नदी का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नदी को आलूदगी से पाक करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को मौके पर ही सख्त अहकामात दिए। चेयरमैन मकरिये ने तजावुज़ात कंट्रोल शोबे के सरबराह संतोष वाहुले को नदी के पाट में मौजूद तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात को फौरी हटाने की हिदायत दी ताकि पानी का बहाव बिला रुकावट जारी रह सके। उन्होंने ड्रेनेज और वार्ड इंजीनियर्स को हुक्म दिया कि नदी में गिरने वाला गंदा और बदबूदार पानी फ़ौरन बंद किया जाए और सनती इलाके से केमिकल वाला पानी छोड़ने वाली कंपनियों को सील कर दिया जाए। इसके अलावा 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर शजरकारी करने और नदी में कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना आयद करने की हिदायत भी जारी की गई। इस अहम दौरे के दौरान मकामी कारपोरेटर्स और जोनल अफसरान बड़ी तादाद में मौजूद। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में 12 जून तक इजाफी पानी की फराहमी शुरू करने के लिए हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया मुतहर्रिक। डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने वाटर टैंक और पाइपलाइन के काम को फौरी मुकम्मल करने की दी हिदायत। काम में लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। अवाम पर महंगाई का दोहरा वार। पेट्रोल 3 रुपये 14 पैसे और डीजल 3 रुपये 11 पैसे फी लीटर महंगा। घरेलू बजट बिगड़ा। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की जंग और इंपोर्ट ड्यूटी 15% होने से सोने और चांदी की कीमतें भी पहुंची रिकॉर्ड सतह पर। सराफा बाजारों में ग्राहकों का रश गायब। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पड़े गाँव में गाइडेंस कैंप का इनेकाद। एक ही छत के नीचे शहरियान को हाउसिंग लोन, शरह सूद और दस्तावेजात की तफसीली मालूमात की गई फराहम। 16 और 17 मई को हरसूल में भी लगेगा खुसूसी गाइडेंस मेला। और तारीखी शहर औरंगाबाद के किला अर्क की सरकारी जमीन पर शानदार उर्दू घर तामीर करने का मुतालबा तेज। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने नायब वजीर आला सुनीत्रा ताई पवार और जिला कलेक्टर को भेजा तफसीली मेमोरेंडम। खाली जमीन को तजावुजात से महफूज रखकर फौरी मंजूरी देने की गई पुरजोर अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।